Well, good evening everyone. Devdeep class is once again back with another video, and as promised today I'll be teaching you a different subject, and particularly my class is dedicated today for the class 10 students. For those of you who don't know me, my name is Devdeep Bose. I'm a faculty of computer science, but I do teach other subjects that are mentioned above here. That is, I am taking the classes particularly of computer science, but apart from that, these are the aforesaid subjects that I do teach. And those of you who want to reach out to me, you can reach out to me at the aforesaid contact detail that has been encircled for you. So without further ado, let's start our class today for class 10 science. Now, in our today's lecture, we'll be discussing about class 10 physics, that is electricity, from the subject science. Now, as per the board perspective of class 10, this chapter comes for 7 to 12 marks, and it has got the wide variety of questions that have been already given here. Out of that, we are now having the newly introduced MCQ that will also take up the share of the questions. So from very short answer question to short answer question to long answer questions, lab based questions particularly related to Ohm's law and all, and MCQs will cover up the majority of the questions. So before we understand what is electricity, we have to know from where does electricity comes from. Electricity basically comes due to the flow of energy that is between the electrons, and we all know that electron do possess a charge. So for that brings us to the concept of the first topic of this chapter, that what is a charge. See, charge kya hota hai? Charge is the inherent property of matter that feels force of attraction or repulsion. So there are two types of attraction repulsive force that exist. Already one has been mentioned to you, that you can see here, that is repulsive force acts between the like charges. So like charges always repel each other, but whereas unlike charges always attract each other. So basically there are two types of charges then: positive charge, which happens due to electron deficiency, and negative charge due to excess of electrons. And moreover, there are two types of attractive and repulsive force that occurs due to the like charges. It occurs due to the like, whereas the other due to the unlike. Okay, so I hope you have noted this down, due to like and unlike charges. Now the instrument that detects the charge is basically what we call electroscope. So the charge of a substance is detected and measured by a device which we call electroscope. We will be learning about electroscopes separately. So what did we understand about charge? ये charge क्या होता है? ये एक वस्तु का खुद का एक प्रॉपर्टी होता है जिससे आप आकर्षण भी, फोर्स भी आप उसको वो महसूस करेगा, या फिर वो रिपल्सिव यानी कि अनअट्रैक्टिव फोर्स वो महसूस करेगा. चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के एब्सेंस के वजह से, और नेगेटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर बड़ी मात्रा में मौजूद है तब. नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, विच इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट कूलम और अ फिजिसिस्ट कूलम. नाउ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये एक डिवाइस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द न्यू टॉपिक कि कैसे चार्ज इंड्यूस होता है. चार्ज इंड्यूस यानी कि इंड्यूस का मतलब है ऐड करना. सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ चार्ज? दैट इज व्हाट वी कॉल इंडक्शन और फिर इंड्यूसिंग. तो अगर किसी सब्सटेंस को हम, सपोज मान लीजिए आपके पास एक इबोनाइट रॉड है, हाँ, तो उसमें आप एक तौलिया ले लिए, फर का तौलिया ले लिए, उसको आप अच्छे से घिस दिए, यू रब इट, देन दैट पर्टिकुलर we also sometimes see whenever fur particularly releases some sparks, that is due to static electricity. तो जब हम उसको रब करेंगे तो उसके अंदर कुछ प्रकार का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जैसे कि इधर नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो रहा है. अगेन इफ वी रब इट विद अ सिल्क क्लॉथ इट विल इंड्यूस पॉजिटिवली चार्ज. तो इससे हम क्या सीखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो उसके साथ अगर चार्ज उसके अंदर मौजूद हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग या फिर एडिंग चार्ज. ठीक है.
तो प्रोसेस ऑफ एडिंग चार्ज क्या होता है कि किसी भी वस्तु को उसके साथ कांटेक्ट में लाने के बाद उसका चार्ज अगर उस वस्तु में मौजूद हो जाए तो हम उसे बोलते हैं इंड्यूसिंग अ चार्ज। ठीक है, तो आई होप विद दिस एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर इंड्यूसिंग अ चार्ज क्या होता है। नाउ ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप? इट इज अ साइंटिफिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इंस्ट्रूमेंट पहले यूज किया था विलियम गिलबर्ट साहब ने। तो विलियम गिलबर्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज दिस डिवाइस। सो ये आपको याद रखना है, विलियम गिलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप एंड विद द हेल्प ऑफ द पाइवोटेड नीडल। इधर एक नीडल यूज होता है, इसे हम बोलते हैं वर्सोरियम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या डिटेक्ट करता है? बेसिकली कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपने क्लास 7-8 में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ग्रुप ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस, मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है जिसका एक चार्ज आपके पास है जिसका है ये है मान लीजिए Q1, तो ये मान लीजिए Q2। इसके अंदर किस तरह का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, इसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्सिव फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू चार्जेस। तो ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर करने में मदद होता है। ठीक है, एंड इन दैट वे इट ऑल्सो गिव्स अस द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय द सब्सटेंस। तो कितना चार्ज एक वस्तु के अंदर हो सकता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये कैलकुलेट करके देता है। तो आई होप इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया। ये किसने आविष्कार किया था? ये यंत्र विलियम गिलबर्ट ने आविष्कार किया था 1600 में। एंड इसके अंदर एक नीडल है वर्सोरियम, जिससे हम एक टेस्ट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो सकता है। किस प्रिंसिपल के द्वारा ये चेकिंग कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन से। नाउ देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के अंदर क्या फीचर्स हो सकता है? पहला जो फीचर है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व होता है, एंड इट इज एडिटिव इन नेचर। ये दूसरा पॉइंट है, एडिटिव इन नेचर। ये यानी कि ऑल द चार्जेस ऑफ द सिस्टम, अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो इट विल बी द सम टोटल ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ चार्ज। मान लीजिए आपके पास 5 कूलम्ब एक चार्ज है, तो इसका मतलब है शायद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में चार्ज 2 कूलम्ब 1 कूलम्ब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो हमेशा चार्ज इज एडिटिव इन नेचर विच इज समेशन ऑफ नेचर, एंड चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, अब कैसे ये पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे चलिए देखते हैं। तो इधर हम देख रहे हैं कि मान लीजिए वही एडिटिव नेचर को हम अगर देखते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर हो गया तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज Q इक्वल्स टू NE, तो ये आ जाएगा N1E प्लस N2E प्लस N3E प्लस N टू द पावर NE, वेयर N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे चार्ज gets distributed in form of packets, and later on the total charge is calculated in terms of its additive nature. ठीक है, तो चार्ज हमेशा पैकेट्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो पैकेट्स किसी इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन। नाउ चार्ज इज रिलेटिवली कांस्टेंट, यानी कि उसका वैल्यू हमेशा फिक्स है। जैसे कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन देखिए हमेशा फिक्स रहता है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। ना चार्ज हम कैसे कर सकते हैं? एक है आपके कंडक्शन के द्वारा, जहां पे whenever we bring one body, एक बॉडी को अब एक वस्तु के करीब ला दिए, अब वो वस्तु का चार्ज अगर कांटेक्ट में आ गया तो वही चार्ज जो वो वस्तु के साथ आप वो चार्ज को कांटेक्ट में ला रहे हैं वही उसका चार्ज बन जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने एक सिल्क का क्लॉथ लिया, उसका पॉजिटिव चार्ज था, उसको मैंने एक रॉड के करीब रखा तो वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये है कंडक्शन। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एक पॉइंट से एक पॉइंट तक। ठीक है, बट इंडक्शन में हम क्लोज कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। इन द इंडक्शन प्रोसेस चार्ज ऑब्जेक्ट इज बॉट नियर बट नॉट टच, कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, बट वो कांटेक्ट के बिना नहीं आने के बावजूद ये क्या करेगा, ये चार्ज ऑब्जेक्ट
न्यूट्रल कंडक्टर को भी पोलराइज कर देगा। यानी कि मान लीजिए अब दो कंडक्टर रखे हैं, जैसे कि मैंने यहां पे दिया है, कोई चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज ला दिए तो नेगेटिव चार्ज यहां पे इंड्यूस हो गया, ट्रांसफर हो गया पॉइंट बी तक, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ऐसे इंडक्शन वर्क करता है कि मान लीजिए ये जो बॉल था ये नेगेटिव चार्ज था, वो फिर बी तक अगर ट्रांसफर कर दिया, बी के वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। दैट इज व्हाट इंडक्शन इज, द प्रोसेस ऑफ एडिंग चार्ज विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। और अगर कॉन्टैक्ट से कोई चार्ज ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। तो इंडक्शन इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट कॉन्टैक्ट, जहां पे चार्ज को हम पोलराइज करेंगे, ठीक है, एंड कंडक्शन में हम चार्ज को ऐड कर रहे हैं बाय कॉन्टैक्ट। तो ये आप याद रखिए। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ फ्लो process of energy or a form of energy rather that can be changed to many form। ये एनर्जी क्यों आता है? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी शो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप आज स्विच दबा दिया, पंखा चालू, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बहुत सारा एग्जांपल्स है जहां पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी फिर क्या हो गया? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हैपेंस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड उससे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली हैपेंस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होने का मेन श्रेय जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार के, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कितना टाइम ड्यूरेशन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में। यानी कि मान लीजिए अगर एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के अंदर अगर Q चार्ज है तो T टाइम ड्यूरेशन में कितना चार्ज जा रहा है, तो I इज इक्वल टू Q/T। यही है अपना इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दोनों ही मेजरेबल क्वांटिटी है। और आपका यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, इसको हम एम्पेयर में बुलाते हैं इन द ऑनर ऑफ अनदर फिजिसिस्ट एम्पेयर, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्यों हो गया आपका? स्केलर क्वांटिटी इसीलिए हुआ क्योंकि ये दोनों ही पैरामीटर्स यानी कि चार्ज या टाइम हम मेजर कर सकते हैं। एंड उसका और एक आप फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं कि NE/T, क्योंकि Q इज इक्वल टू NE, ठीक है ना। SI यूनिट जो हमने देखा कि कूलम पर सेकेंड, तो इसीलिए हम एम्पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस हम यूज करते हैं जिसका नाम है एमीटर, ठीक है। सिंबल ऑफ एमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम पढ़ेंगे, वो किस इस प्रकार का होता है सिंबल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का दिशा उल्टा होगा। सो इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। एंड इलेक्ट्रिक करंट क्यों उत्पादन हो रहा है? ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। दो एन कंडक्टर, दोनों एन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट उत्पादन होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये अब हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन जो सीबीएसई में बहुत बार आता है कि व्हाट इज 1 एम्पेयर ऑफ करंट, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ अ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी कि एक कूलम ऑफ अ चार्ज पर सेकेंड में अगर किसी भी कंडक्टर से फ्लो करे तो उसे हम बोलते हैं 1 एम्पेयर। ये जरूर आप पढ़िए ठीक से और याद रखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया, जैसे कि मैंने इधर दर्शाया हुआ है कि इट इज शोन ओवर हियर। तो मान लीजिए कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज गॉट अ प्रॉपर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी यानी कि फोर्स इज एक्सपीरियंस, दैट इज कैसे हम इसको मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमेशा यह याद रखिए कि F/Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज F/Q। तो
यूनिट उसका इसीलिए बन जाएगा N/C, न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोट होता है E से, और उसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, और वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है, कितना अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या कितना रिपल्सिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और इट इज डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे हम जांच सकते हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना फोर्स हो सकता है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कितना कार्य या अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना है टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी नीड टू डू, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड फॉर्मूला आपका हो गया V = W/Q, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसका जूल पर कूलम, वर्क डन का यूनिट है आपका जूल, और चार्ज का यूनिट है कूलम, तो ये आपका ये आ गया जूल पर कूलम, जिससे हम लिखते हैं वोल्ट। इट इज नेम्ड आफ्टर अ फिजिसिस्ट अलेसांड्रो वोल्टा। द वोल्ट हो गया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर कर सकते हैं बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। SI यूनिट पहले आपको बता दिया है कि वोल्ट, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V2 - V1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं VV - V है, इफ वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स एज A and B। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप बोथ द टॉपिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है। अगर कोई भी डाउट यहां तक आपको है तो प्लीज यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में पूछने में मत भूलिए। प्लीज रीच आउट टू मी विथ योर डाउट्स। ना ओम्स लॉ, ये बहुत ही एक वाइटल लॉ है, हर एक कंडक्टर ये लॉ को फॉलो करता है, और कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी है जो ये लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये दिए थे फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने। इस लॉ के अनुसार एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल पैरामीटर अगर कांस्टेंट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समांतराल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इधर यूज हुआ है, इसको हम R से डिनोट करेंगे। R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच वी आर कॉलिंग इट रेजिस्टेंस, यानी कि बाधक क्रिया। रेजिस्टेंस यानी कि बाधक क्रिया। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स while they are flowing through the conductor। जितना रेजिस्टेंस होगा आपका उतना ही करंट, और करंट आपका कंडक्टर में, जैसे कि आप देख सकते हैं R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना यानी कि करंट आप फ्लो थ्रू द कंडक्टर आपका बहुत ही कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस ऑफर टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर अच्छे से नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा पैदा नहीं होगा। तो ओम्स लॉ से हम क्या सीखे, इस लॉ के अनुसार अगर फिजिकल पैरामीटर्स को हम मद्देनजर रखते हुए, अगर वोल्टेज थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समांतराल हो गए इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। और इधर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम ले रहे हैं R, जिसे हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है बाधक क्रिया क्षमता, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो में रुकावट आ रहा है। इट इज द अमाउंट ऑफ हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और जो कंडक्टर्स बेसिकली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और ये पर्टिकुलर ग्राफ पे वो रेस्पॉन्स करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन पे रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जो ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर्स है, वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द ग्राफ ओवर हियर। सो दीज आर द VI कर्व फॉर conductors, both ohmic and
नॉन ओमिक, ठीक है। तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स का VI ग्राफ दिया गया है। तो आई वुड लाइक टू एंड माई क्लास हियर टुडे। आई होप यू हैव jotted down the important points from the lecture. In our next class, particularly related to physics, class 10th, I'll be giving you some questions of numericals and also showing you how to solve the certain questions. तो next class में हम लोग numerical discuss करेंगे। तो if you have any doubts in the overall lecture, please don't forget to reach out to me on the comment section of the aforesaid video. And at the end, as a part of my formality, please don't forget to subscribe my channel, that is Devdeep Classes. I place to come up with more interesting videos for the aforesaid classes, and hope you tune in tomorrow for another content of a different subject. Thank you all for tuning in today. Thank you so much.